أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج المجمعين المعصومين بسم الله الرحمن الرحیم. میرے تمام دیکھنے والوں کو یا علیہ السلام علیہ. یہ میرے کل والے بلاگ کا جو ہے پارٹ 2 ہے. آئیے بسم اللہ اپنے پارٹ 2 کو سٹارٹ کرتے ہیں. تیسرے امام بارگاہ کی جانب چلتے ہیں. اکبر علی شاہ کے امام بارگاہ سے ہم اپنے تیسرے امام بارگاہ کی جانب جائیں گے. بسم اللہ چلیں میرے ساتھ. جی بسم اللہ. امام بارگاہ میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ مجھے پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ 8 محرم کی رات کو میں یہاں پہ آئی تھی موچی دروازہ کی شب عاشور اور صبح عاشور کے حوالے سے تیاری دکھانے کے لیے. تو تب یہ سبیل لگی ہوئی تھی. تو یہ وہی سبیل ہے جو لاسٹ ایئر بھی میں نے کور کی تھی اور اس دفعہ بھی وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے جتنی لاسٹ ایئر لگ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ وہاں جانے سے پہلے آپ کو اس کا بھی ایک شارٹ دکھا دو. بسم اللہ زیارت کریں. سبیل امام حسین علیہ السلام. جی بسم اللہ. یہاں پہ جو سبیل کے بانیان ہیں بزرگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان سے کچھ اس سبیل کی تاریخ جو ہے وہ بھی پوچھتے ہیں کیونکہ پچھلے سال بھی کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے سبیل تو دکھا دی تھی لیکن تاریخ نہیں بتائی. اس دفعہ تاریخ پوچھتے ہیں. جی بسم اللہ. جی سید. سن 47 جی میری پیدائش. جی اقبال حسین بننا جی سمجھ آئیے. ایک سبیل لگتی مدت ہو گئی ہے. 200 سال ہو گیا. اور میرے والد صاحب میرا تایا میرا دادا سے اپنے کشمیری پڑھا میرے اور کنارے ڈال کے دینا تیار کرو شروع کیا. سمجھ آئیے. وہ زیارت ہوں تک چلتی آ رہی ہے. انہوں نے سڑکیں میری حالت 93 جا رہی ہے. مالک پتہ نہیں ہوں نہیں لے جاوے پاوے اور یہ مہربانی ہے مالکانی. میں شیر کریے نا جھاڑو پاشا امام خانے کا کنا لیا جھاڑو کشی کرنا تھا وہ تو وضو کر کے پھر میں جاتا جاتا بھی صفائی کرنا تھا. اور تو چار پانچ چن کر کے ہوں میں ریٹائر ہو کے تابوت ٹھیک کیتا ہے. ہاتھ لاؤ ہوتے جانا. انہیں جو آٹا گردا وہ آٹا ختم کیتا ہے. انہوں نے چوکی رکھ لی جو آٹا گردا ہے اور اپنا مٹی جا کے دریا. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے. پروردگار کی ذات ایک چیز کا اجر دے دے. جاہلی شاید اللہ پاک کی صاحب میرے کو پوچھنا پہ دور کرے تاری صحت دے. آج مولا جا بنیا دی مولا نے بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے ملت جعفریہ کا سرمایہ ہے. یہ نہ ہو تو ہمیں پرانی تاریخوں کا اور پرانی عزاداری کا اور پرانی سبیلوں کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہو. محمد والے محمد انہیں ہمارے سر پہ سلامت رکھے. آئیے بسم اللہ امام بارگاہ کی جانب چلتے ہیں. جی بسم اللہ. میں اس وقت موجود ہوں سائرہ بی بی کے امام بارگاہ میں. جیسے کہ میرا آپ سب سے وعدہ تھا اور لاسٹ ایئر سب نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے یہ امام بارگاہ موچی دروازہ کا لازمی کور کرنا ہے. تو آئیے بسم اللہ. جہاں پہ انہوں نے ذریعے رکھی ہوئی ہیں علم وغیرہ نصب ہے آپ کو وہاں کی زیارت کرواتے ہیں. پھر باہر سارا سین بھی دکھاتے ہیں. بسم اللہ. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا تابوت ہے. وہ شہزادے علی اصغر کا یہاں پر جو تخت ہے مولا کا وہ بھی رکھا گیا ہے. قائم آل محمد لکھا ہوا ہے. یہ تعزیہ ہے. یہ بھی تابوت ہے. یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا تابوت ہے. یہ بھی یہ سامنے دکھائیے گا اکبر بھائی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نفاست کے ساتھ یہ جو ہے یہ چنیوٹ میں ایسے جو ہے جھولے بنتے ہیں. اس کو چنیوٹی جھولا کہا جاتا ہے. یہ شہزادے علی اصغر کا چنیوٹی جھولا بھی یہاں پر موجود ہے. اور یہ تقریباً سرائے ماتم ہو یا پھر نثار حویلی ہو یا سائرہ بی بی کا امام بارگاہ ہو یہ تقریباً سب سے پرانے اور سب سے قدیمی امام بارگاہوں میں سے ایک امام بارگاہ یہ بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ یہاں آنا ہے اسی وجہ سے میں آئی ہوں. اکبر بھائی وہ سامنے دکھائیے گا جو شبیہ ذوالجناح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ شبیہ ذوالجناح کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مولا کے حرم کی شبیہ بھی دی ہوئی ہے. ساتھ ہی شہزادہ علی اصغر کا جو ہے آپ کو جھولا بھی نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ہے یہ انہوں نے
एक कमरा सा है जिसको अज़ा खाने का नाम देके वक्फ किया हुआ है, और बेशक ये अज़ा खाना ही है। जो सामने अलम लगे हैं वो भी आप देखेंगे, यहाँ पे चहारदा मासूमीन के नाम है, जो कि अलम के नीचे आप देख रहे हैं जो फरेरे हैं उन पे नस्ब है। आइए बिस्मिल्लाह, आपको भाई से सेहन दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाए। मेरी दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि ये एक उन्होंने पहले ही नीचे आप देखें कि मिंबर की शक्ल देके बनाया हुआ है। यहाँ पे ये मिंबर है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। अभी फिलहाल फोल्ड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मजलिस जो है वो लेडीज होती है, और लेडीज मजलिस हो चुकी है। अभी जो आगे इनके जो मतवली हैं हम उनसे पूछेंगे, इसकी तारीख पूछेंगे, कितना पुराना है और कितना अरसा हो गया इस इमाम बारगाह को बने हुए। और ये बीबी जो सायरा हैं ये कौन है और किन के नाम पे जो ये इमाम बारगाह है वो बना हुआ है। बिस्मिल्लाह, आते हैं बानियान अभी बाहर गए, आते हैं तो उनसे जो है पूछते हैं तारीख और आप सब तक पहुंचाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हसन इमाम बुखारी, जो कि इस इमाम बारगाह के मतवली हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके बुजुर्गों ने कब ये इमाम बारगाह तामीर करवाया, कितने साल हो गए हैं, और अब इनकी कौन सी नस्ल है जो यहाँ पर ड्यूटी दे रही है। बिस्मिल्लाह जी, आइए मदद। जी पीर मौला अली मदद जी, सैयद हसन इमाम बुखारी व सैयद नासिर इमाम बुखारी। ठीक है जी, बारगाह की तारीख कम अज़ कम 250 से 300 साल पुरानी है जो बुजुर्गों की। ठीक है, मेरे दादाजी सैयद अयूब, वालिद साहब सैयद नासिर इमाम बुखारी, जी जी दादाजी मौलवी अयूब हुसैन बुखारी वो थे जिन्होंने माशाल्लाह अल्लामा हैरी साहब का जनाजा पढ़ा। माशाल्लाह अल्लामा हैरी साहब वो हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल साहब का जनाजा पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं जब अल्लामा इकबाल साहब बहुत हुए तो उनकी वसीयत ही मेरे जनाजा अल्लामा हैरी साहब का है, माशाल्लाह और अल्लामा हैरी साहब की वसीयत ही मेरा जनाजा मौलवी अयूब हुसैन। माशाल्लाह। ठीक है, मेरे दादाजी हैं मौलवी अयूब हुसैन जी बुखारी, वो पाकिस्तान बनने से पहले के फोर्थ हुए। जी जी इसी तरह उनके वालिद साहब थे पीर लुत्फ़ अली शाह बुखारी। जी जी ठीक है, उनके मौज़ात माशाल्लाह लोगों ने, हमारे अहले मोहल्ला शिया सारे जानते हैं। फिर इसी तरह उनके वालिद साहब थे पीर असगर अली शाह बुखारी। जी जी उनसे तकरीबन ये 17 सदी के शुरू जी हुआ जी हुआ। ठीक है, मिड में शुरू हुआ। तब कहते हैं कि मजालिस इस तरह शुरू हुई कि ख़वातीन में दर्स दिया करते थे, ख़वातीन पर्दा डाल के भी दर्स दिया करते थे, माशाल्लाह मजालिस करते थे। माशाल्लाह फिर हिस्ट्री ये है कि बुजुर्गों से सुना हुआ है जी, हम तो थे नहीं, बुजुर्ग कहते हैं जी तब हिंदुस्तान से पालकी में एक ज़ाकरा आती थी, पालकी में माशाल्लाह आती होती थी। फिर मजालिस का सिलसिला ख़वातीन का बहुत पुराना है जी, माशाल्लाह तकरीबन 200 साल पुराना है। और आपी इकबाल साहिबा, ठीक है, उनकी सास आपी इनायत साहिबा जी जी तकरीबन 40-45 साल पढ़ के गई हैं। माशाल्लाह इसी तरह आपी इकबाल साहिबा ये दरगाह बतूल अली, ठीक है, जी जी वो 40, उनको भी बीबी सायरा नहीं बैठाया, वो भी 40-45 साल पढ़ के गई हैं। और माशाल्लाह सईदा बीबी सायरा जो जी जी पीर लुत्फ़ अली शाह की बेटी थी, जी जिनकी जी मेहनत है, जिनके नाम से बार का मंसूब है, ठीक है। उनके भी मौजज़ात लोगों ने अहले मोहल्ला सब जी जानते हैं माशाल्लाह। उन्हीं का है, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का अजर है, उन बुजुर्गों की मेहनत है। जो अज़ादारी वो कर गए हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल जो बेशक बेशक। पुरसेदारी वो कर गए हैं हम उस काबिल भी नहीं। अल्लाह बिल्कुल। ताला हमें जो अज़ादारी का हक है वो इलाही अदा करने आमीन की तौफीक, इलाही सबसे बड़ी दुआ ही आजकल यही है इलाही आमीन कि जो अज़ादारी का इमाम ज़माना कबूल व मंजूर फरमाए और वो इलाही हक आमीन अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। बीबी जी 1963 में पहुंच हुई। जी ठीक है, और बीबी जी के बाद यानी माशाल्लाह सिलसिला अभी तक आज तक चल रहा है। पूरा अशरा होता है मजालिस का ख़वातीन का, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह के टाइम होता है, 8 बजे अशरा शुरू होता है और 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी जी तरह 6 मुहर्रम की मन्नत की सेब की मजलिस बहुत मशहूर है। ठीक है, ठीक हो गया। मन्नत की बरसगीर में सेब का इजरा यहाँ से हुआ था। बच्चे अच्छा अच्छा अच्छा। मन्नत यानी 6वीं का अलम बरामद होता है, बड़े बड़ा मोइज़ाती अलम है। जी ठीक है जी जी, काफ़ी कदीमी बीबी सायरा के वक्तों का बरामद हो रहा जी जी है। और काफ़ी मेरी सुन्नत जमात बहनों को बड़ी बड़ी बामुराद हुई है यहाँ से आके। माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। मौला पंचन पाक के दर पे आती हैं, अपने बिल्कुल दिल से मौला सुनते हैं जी, बिल्कुल बेशक बल्कि उनकी ज़्यादा सुनते हैं, बेशक। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बस उनका करम है, बीबी का करम है, इन दिनों के सदके मौला सबको बामुराद इलाही करे जी। आमीन। ये सिलसिला चल रहा है और ये अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और ये चलता रहे। तकरीबन 250 साल हो गए हुए इस सिलसिले को, ऑलमोस्ट तकरीबन माशाल्लाह इतने, ये हमारी तकरीबन 9वीं या 10वीं पुश चल रही है। ठीक है, इस माशाल्लाह तरह माशाल्लाह। मौला कायम दायम रखे। मौला कायम होता है, ये जिक्र के सदके मौला चलता रहे और ये जिक्र होता रहे। आप बिल्कुल। सबको लोगों को बस यही तरीका है कि बारगाह के गली का नाम भी माशाल्लाह बीबी बीबी सायरा से ही सायरा है। शुरू हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है, बीबी सायरा के माशाल्लाह शेख बरादरी बहुत मुरीद थी। ठीक है, लोग कहते हैं माशाल्लाह। जब बीबी जी का जनाजा उठाया गया जी जी लोगों ने उनकी मिट्टी भी मस करके ले अलमों में उनका जनाजा गया। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैकलोड रोड जाएं, कब्रिस्तान मोमिनपुरा में जी जी पहली कब्र ही बीबी सायरा की है। माशाल्लाह। सैयदजादी ने इतनी खिदमत मौला की किया कि अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की हुई थी जी और जी सैयदजादी ने शादी भी नहीं कराई थी अपनी। ठीक है, माशाल्लाह। और इतने अब तो हम लोग इतना कुछ पूरी करते हैं, नए जिंदगी कपड़े, उन्होंने वक्फ कर पहले दी। कहते हैं 4 पहियाँ उल्टी होती थी माशाल्लाह,
जी सर जी में कंगी नहीं लोग फेरते होते बिल्कुल थे, ऐसे ही है, अयान नहीं होते थे। और इतना गिरिया बीबी जी के मुतालिक सुना हुआ, इतना गिरिया करती थी, कोई दुआ के लिए आता था उसी उस वक्त ही पता लगता था कि उस बंदे की दुआ पूरी हो। माशाल्लाह और जुबान में अल्फाज में इतनी तासीर थी, इतने मोजात थे। तो माशाल्लाह बरक़ात सुने हुए हैं कि बाद टाइम आते चने पुलियाँ होती थी, और यहाँ तक सुना हुआ है कि सोने की भी निकली हुई हैं, बड़ी बड़े माशाल्लाह मोजात होते थे, लेकिन उन्होंने कभी किया ही नहीं। परदादा जी का मेरे कहते हैं कि बड़ी बीबी जी बताती हैं कि बाबा जी सुबह मजलिस ही है, लेकिन घर तबरक का इंतजाम नहीं है। कहते बीबी घबराना, कुंडी खड़कती थी, कोई तबरक का इंतजाम हो जाता था। माशाल्लाह क्या कहने इसी तरह जो मुंह से निकालते थे सिद्के दिल से करते थे। इतना तवक्कुल अज़ादारी में खलूस होता था, रवादारी बेशक होती थी, बेशक प्यार होता था, एहतराम होता था, बेशक जो आजकल नजर नहीं आता। अल्लाह ताला ऐसे ही तौफीक दे हमारी आने वाली नस्लों को, इलाही उनको आमीन बड़ों का अदब करने की तौफीक इलाही अता कर। आमीन और जो जो मरूमीन हमारे चले गए आज के दिनों के सदके, अयाम ज़ा के सदके, उनको जवार मोहम्मद वाले मोहम्मद इलाही आमीन मजीद जगह अता इलाही आमीन जी जैसे कि मेरे साथ बीबी सायरा के इमाम बारगाह के मतवली मौजूद थे, आपने इनकी हिस्ट्री जानी। यहाँ से अब चलते हैं अपने चौथे इमाम बारगाह की जानिब, मेरे साथ ही रहेगा। बिस्मिल्लाह। ओहो रस्ते ओहो बूहे ओहो मिटिया अकबर ओहो तांगा ओहो आसा ओहो चिट्ठियां अकबर वेख ले असी भेड़ भिरा सांझे साडा दर्द भी साझा अकबर में जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त मैं जिस इमाम बारगाह में मौजूद हूँ वो इमाम बारगाह है अतिया अहले बैत, जो कि मेरा मोची दरवाजा के मोस्ट फेवरेट इमाम बारगाहों में से एक इमाम बारगाह है। इस इमाम बारगाह की जरा एक बार तैयारी दिखाएं। जो इसमें ये जो सुर्ख लाइट है जो जल रही है, क्या कहने इसके। और आप देख सकते हैं कि एक एक चीज कितनी नफासत के साथ लगाई गई और कितनी खूबसूरती के साथ अतिया अहले बैत को सजाया गया। ये ऊपर दिखाइएगा जरा, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत चहारदा मासूमीन के नाम है जो चारों तरफ है, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इनके जो मतवली थे उनका नाम था शौकत अली। अब उनकी जो नस्ल है वो इस इमाम बारगाह की कफालत कर रही है और इस इमाम बारगाह को संभाल रही है। इस इमाम बारगाह की सबसे खास बात ये है कि ये इमाम बारगाह जैसे पुराने दौर में था उसी तरह ही है। इस इमाम बारगाह में आपको कहीं भी कोई टाइल नजर नहीं आएगी, कोई आपको किसी भी किस्म की कोई और चीज नजर नहीं आएगी। जैसे पुराने मोची दरवाजा के कदीमी इमाम बारगाह होते थे, ये उसी तरह इमाम बारगाह ईंटों का बना हुआ। अकबर भाई थोड़ा जूम करके दिखाएगा, ये दिखाइएगा, ये आप देख सकते हैं। ये पत्थर है, ये ईंटें हैं जिनको ये हर साल जो है जैसे सुर्ख रंग में तब्दील करते हैं और फिर सारी सुर्ख लाइटिंग करके इस इमाम बारगाह को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाता है और इसको दिखाया जाता है। ये अतिया अहले बैत है, मेरा मोस्ट फेवरेट इमाम बारगाह मौजूद हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। मौला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सिवाय हमें हुसैन बादशाह के कोई गम न दे। आइए आगे चलते हैं अपने अगले इमाम बारगाह की जानिब। एक दफा राउंड करके एक बार भाई दिखा दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहंदी शाह के इमाम बारगाह में। मैं लास्ट ईयर भी आई थी तो मैंने सोचा कि जो अब मैं मोची दरवाज़ा के जो मैंने कंप्लीट इमाम बारगाह हैं जो मैंने कर लिए हैं, कुछ रह गए अभी भी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने रखे हैं, वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो मेरी मोची दरवाज़ा की थी वो मैं अब कर चुकी हूँ इमाम बारगाह कवर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ही एहतमाम पजीर किया जाए क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पर ही किए। तो आए बिस्मिल्लाह। जो बैनुल हरमैन, जो मुझे पुराने देखने वाले हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने अंदर बैनुल हरमैन की जो है वो एक शबी दी है। तो आए बिस्मिल्लाह अंदर ज़ियारतों की जो है वो ज़री की ज़ियारतें करते हैं और चले मेरे साथ आगे। जी बिस्मिल्लाह। लास्ट ईयर की तरह भी उतनी खूबसूरती के साथ ये सजा गया है। इस जानिब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और इस जानिब मौला अब्दुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो कि बैनुल हरमैन की उन्होंने एक जो छवि है वो दी हुई आप सब जानते हैं। यहाँ पर मैं जो मोची दरवाज़ा के इमाम बारगाह है और अब आपको मेरे तबस्सुम से जो आज़ादारी इमाम हुसैन है जो कुर्सी हैं वो मिलना स्टार्ट होंगे कल के बाद। कल एक और खास जगह हमने जाना है इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। आने वाले ब्लॉग आपको आज़ादारी के हवाले से मिलेंगे जिसमें आपको प्रॉपर आज़ादारी दिखाई जाएगी, जिसमें शहज़ादा अली असगर का झूला हो, शहज़ादा कासिम की मेहंदी हो,
9-10 मुहर्रम का जुलूस हो, उसके अलावा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, वो आपको सब देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप सब चाहते हैं कि आप सब ये देखें और आप सबको ये मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हम मौला हुसैन के बाद आप लोगों के लिए मेहनत करें कि आप तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमन के पैगाम को पहुंचाया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को एक पॉजिटिव वे से पहुंचाया जाए। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप इस आज़ादारी को आगे फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर हमारे तवस्सुल से, हमारे ज़रिए से आप तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पहुंचती है या करबला का मकसद पहुंचता है तो खुदारा उसे आगे ट्रांसफ़र करें, अपनी नस्लों में लेके जाएं, नस्ल दर नस्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी करें। मौला हुसैन नफ्स मुतमइन्ना है, रब ने उन्हें नफ्स मुतमइन्ना कहा है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को हमने कैसे मनाना है, अमन में कैसे पैगाम देना है, वो सब तक पहुँचाए। अमन और अमान से आज़ादारी इमाम हुसैन हर साल हम लोग करते हैं, हमारी पूरी शीयत करती है इंशाल्लाह। उसी तरह इस साल भी अमन और अमान के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आयामों को मनाया जाएगा और जो हमारे 2.25 महीने की आज़ादारी है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेंगी, कायम के आने तक भी और कायम के आने के बाद भी। और इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल पर भी 2.25 महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो मिलेगी। यहाँ पर इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरे बहन भाइयों को भी, मेरे अहल व अहवाल को भी, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ फिर से। वस्सलाम या अलैहिस्सलाम।